अनीशा, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। बहुत बहुत बधाई आपको आपके सिलेक्शन को लेके। एंड Thank you so much, sir. टेल मी अबाउट योरसेल्फ, फ्रॉम वेयर डू यू कम, योर academics and grades and research Yes, sir. experience. So I come from Kurukshetra, Haryana, and I have done my bachelor's and master's in the field of chemistry from Kurukshetra University, Kurukshetra, and Okay. then I have involved in an internship program at Punjab University, Chandigarh, and there I have gained some hands-on experience on the uh, instrumentation. Uh, Mm-hmm. at the time of my master's, I have thought of getting a PhD degree, but I was preparing for NET and JRF. At that time, Okay. one of my seniors came to me and she said that I have got selected in PhD abroad in Canada. And at that Okay. time I also start thinking about this process, like it's a good thing, to go abroad and for a doctoral degree. So Yes. from there I got to know many things. Then when I was in Chandigarh, Punjab University, one of my friends told me about you, that you Okay. are specialized in, only for PhD. Then I have Yes. seen your YouTube videos and got to know that I at that time I have made up my mind that I'm gonna do this process via you. So I messaged you around 6 months ago, I think around Diwali, and Mm-hmm. I was very sure that I will do with you. Okay. Then whatever you said, I just do, and with patience, I've messaged ma'am very many times that nothing is getting right. After so many emails that didn't start with congratulations, like no, we don't have any position. There are many other students, and I was like, ma'am, one more email, and I didn't got selected. And she was like, have patience. So many times I've called you, and you're like, no, Yes. it will come online sometime. But then, after so many trials and so much time, there's Mm-hmm. one email that starts with congratulations, then the interview process, and you have helped me with that. You make the list of questions, and there's also a trial interview. That was my first interview, and Okay. it went well. It went really good. And at that time the professor told me that I remember I asked him how many students are there in your lab, and he said we have five students, and he named four of them and said, and you're the fifth. And I thought, like, okay, am I selected? And he was like, no, no, it's not official, I'll tell you in some time. And I It was takes some kind time. of sure, but yes. Sorry, sir. Obviously, it takes time. They evaluate the Yeah, but candidate and then think. yeah, but the Yes. way he was talking, I thought that maybe he likes me for his lab and I got selected. And it's like, no, it's not official yet. Okay. And after that, I was messaging ma'am, can we should write an email about asking if I got selected or not? And she was like, not yet. Wait for 15 minutes. Wait for 15 days. 15 days. And as 2 weeks. every second day, ma'am, should we get an email? She said, no, wait. And then at the ninth day, the email I received, it Yes. was a tough time for me. It was very tough, but you made it a lot easier. सभी के लिए रहता है इसमें. This is nothing new. You have to be patient and then things fall in place. तो आपका जो रहा है स्पेशलाइजेशन इज इन फिजिकल केमिस्ट्री, राइट? इन द Yes, sir. मास्टर्स. I आपने 2024 में आपने मास्टर्स कंप्लीट किया, राइट? Yes, then उसके बाद मैंने टीचिंग की 1 साल, एंड आई एम आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर नेट एंड जेआरएफ. आई हैव क्लियर्ड नेट बट आई डिडंट गेट थ्रू जेआरएफ. और उसके बाद फिर मुझे पता लगा कि वो जो मेरी सीनियर जो गई थी, जब वो मिठाई ओके. लेके आई, तो फिर मैंने, अच्छा. हाँ, वो
शायद मैं डिपार्टमेंट ही थी तब, और फिर वो आई और उसने मुझे बताया कि है ना मेरा ऐसे ऐसे हुआ और मैं आज स्वीट्स देने आई हूँ। फिर मैंने उससे पकड़ लिया, मैं क्या अब हम अच्छे से बात करेंगे, अभी नहीं करते। तो आपका वेयर इज योर नेटिव प्लेस और फैमिली में कौन कौन है? हम कुरुक्षेत्र ही है यहाँ। मैं न्यूक्लियर फैमिली, आई लिव विद माय पेरेंट्स एंड माय सिस्टर अच्छा एंड अच्छा। my grandparents are there in Punjab. I am born in Punjab, but my father job is here, so we shifted. शिफ्टेड हियर, ओके। आपका कहाँ सिलेक्शन हुआ और क्या रिसर्च इंटरेस्ट है, क्या स्कॉलरशिप वगैरह है? हाँ, मेरा एक्चुअली जो मेरी लाइन थी वो फिजिकल केमिस्ट्री थी, और एक केमिस्ट्री में ये बहुत है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम पता नहीं बाय डिफॉल्ट क्यों ही प्रेफरेंस दी जाती है। हम्म। तब भी ऐसा ही था कि जब स्ट्रीम लेनी थी मास्टर्स में तो बच्चे नहीं, हमें मेरे जो फ्रेंड्स थे हमें ऑर्गेनिक लेनी चाहिए, और मेरे को ऑर्गेनिक पसंद नहीं थी। मेरा ओके। फिर मैंने अपने टीचर से बात करी एंड दे वर लाइक नो, फिजिकल इज अ गुड ऑप्शन। तो मैंने फिर उनसे बहुत बात करके, और तब मुझे पता था कि ऑर्गेनिक तो मैं नहीं लूंगी, है ना, जिसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। तो और इस इंटरव्यू में भी मैंने सिर्फ अपनी फिजिकल केमिस्ट्री वाली ही सारी डाली थी। मैंने मैम को कहा कुछ कि याद मैम है मुझे क्या? क्या क्या क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए? ये, मैंने ना मैम को बोला कि मैम अगर फिजिकल में सिलेक्शन नहीं हो रहा हम ऑर्गेनिक कर देते हैं। तो मैम कह रही हम्म, नहीं नहीं ऐसे नहीं करना, जिसमें इंटरेस्ट है वहीं जाना है। वही करना चाहिए, यस यस। वही किया। पता लगे आप तो किसी फील्ड में चले गए, उधर मन ही नहीं लगा आपका। क्योंकि वो बहुत टाइम हो गया था ना अंदर ही मुझे भी कि नहीं कुछ हो नहीं रहा है। तो जब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो उन्होंने पहले ऐसे रिसर्च के बारे में पूछा, उनका बैकग्राउंड और जो उनकी रिसर्च थी वो भी अ, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पे थी जो कि फिजिकल के ही अंडर आता है। तो यस उन्होंने मेरे यस से यस। पूछा आपको सिंथेसिस में इंटरेस्ट है या फिर आपको ये फिजिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में इंटरेस्ट है। तो मैंने उन्हें मैं क्या सर फिजिकल में ही मेरा इंटरेस्ट है, सिंथेसिस मुझे पसंद नहीं है, बट अगर थोड़ी बहुत हुई तो मैं कर लूंगी, मैं मना नहीं करूंगी उससे। तो उन्होंने कहा कि नहीं अगर आपका सिंथेसिस में इंटरेस्ट है तो दिस इज नॉट अ गुड प्लेस फॉर यू, मेरा इंटरेस्ट सिर्फ स्पेक्ट्रोस्कोपी में ही है। तो मैंने फिर वो मेरे साथ बैलेंस हो गया कि हाँ मेरा भी नहीं है सिंथेसिस में। तो उन्हें ये जान के अच्छा लगा कि कोई ऐसा है जो भी ऑर्गेनिक को इतनी प्रेफरेंस नहीं दे रहा है, क्योंकि वो इंटरेस्ट की बात थी। उसके बाद उन्होंने मेरे से और क्वेश्चंस पूछे कि मैंने अपनी रिसर्च इंटर्नशिप में क्या क्या किया है, क्या क्या मुझे करना आता है, इंस्ट्रूमेंटेशन प्रैक्टिकल वर्क। बट ही वॉज वेरी लीनियंट अबाउट दीज थिंग्स। उन्होंने कहा कि जैसे हम स्टार्ट करेंगे तो उनकी लैब के हिसाब से जो भी इंस्ट्रूमेंटेशन है उसके बेसिक्स थोड़े सिखाए जाएंगे, बताया जाएगा उन्हें हैंडल कैसे करना है। यस। बाकी उन्होंने मुझे कोर्स वर्क के लिए भी गाइड किया। और इंटर्न स्टाइफन का भी है अराउंड 20 to 20,000 है एनुअली, 20 to 20,000 डॉलर्स। एंड इसके साथ साथ टीए भी है, टीचिंग यस। असेसमेंटशिप। हाँ, वो कुछ स्पेसिफिक आवर्स होते हैं हर यूनिवर्सिटी के कि वो आप पढ़ाएंगे और फिर उसकी असेसमेंटशिप आपको मिलेगी। तो ये सारा किस भी मुझे यूनिवर्सिटी सर, से आपका सिलेक्शन है? मेरा वेस्टर्न यूनिवर्सिटी लंदन ओंटारियो कनाडा। वेरी, बहुत बहुत। तो जब ये ऑफर आया वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से, तो कैसा लगा, कैसा महसूस हुआ? थोड़े टाइम के लिए तो जब मैंने मेल पढ़ा ना, मैंने 3 4 बार पढ़ा कि ये पक्का पॉजिटिव वाला ही है ना, और फिर ऐसे काफी ऐसे शांत सी मैं बैठी रही। फिर मैंने अपने, क्योंकि तब शाम हो रही थी, मेरा मन कर रहा था कि मैं आपको बताऊं, बट आफ्टर 6 मैं कनेक्ट भी नहीं कर पा रही थी। तो फिर मैंने घर बताया, सारे बहुत खुश हुए पहले, फिर मैंने नेक्स्ट डे, फिर जब मैंने आपको बताया तब मुझे ज्यादा खुशी हुई। और फिर आपका कॉल आया, मैं फिर तूने कुछ करा ही है। फिर उन्हें तसल्ली हुई कि अब कुछ कर रही है। तो हैप्पी फॉर यू। और आई नो कैसे इमोशंस रहते हैं जब जो आप करना चाहते हैं, एक पड़ाव उस तरफ बढ़ता है और वो सक्सेस मिलती है। लेकिन यस। अनिशा ये भी कहूंगा मैं, लाइक अच्छा प्लेटफॉर्म है, वर्ल्ड क्लास प्लेटफॉर्म है, जहाँ फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, सुविधाएं हैं। आप जो आप करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं बिना किसी डाउट के। जो अभी तक आपने मेहनत की है उसको मैनीफोल्ड बढ़ाने की आवश्यकता होगी, है कि नहीं? और जितना आप यस। अच्छा इनपुट डालेंगे उतना ही आउटकम अच्छा आएगा, है कि नहीं? यस सर। तो दिस इज आई मीन ग्रेट न्यूज। होता क्या है, देखो जब हम लोग शुरुआत में इंटरेक्ट करते हैं इनिशियली,
पर्सनली मी, फिर टीम का रोल आ जाता है। अनलेस एंड स्टूडेंट मुझसे बात करना चाहे, है कि नहीं, तो वो एक रोलिंग प्रोसेस है। तब मुझे लगता है कि वेल, अब काम हुआ है, बहुत बड़ा काम है, तो ये मेरा दायित्व है, एक बार स्टूडेंट से बात की जाए। दिस इज व्हाट आई फील लाइक। आई कैन सी सम इमोशंस हियर ऑन योर फेस, व्हिच इज प्रीटी नहीं, नॉर्मल। मैंने मैम को भी फिर जब हो गया था ना, उन्हें भी मैंने थैंक यू बोला। मैं क्या मैम, आपने भी बहुत पेशेंस रखा और मेरी हर फालतू फालतू बात का आपने भी सही, मतलब इतना मेरे को आपने टॉलरेट किया है जितना मैंने आपको तंग किया है। एंड दे वर तो लाइक, नो आपने इट्स अच्छा। कनाडा ही क्यों पिक किया? सर, इसके दो रीजंस हैं। एक तो फर्स्ट तो ये है कि मेरी मोस्ट ऑफ द फैमिली कनाडा ही है। और सेकंड ये है कि जैसे हम अगर यूरोपियन कंट्रीज में जाएं तो उसके लिए एक लैंग्वेज बैरियर आ जाता है कि ट्रू। हाँ, और इंग्लिश एक ऐसा है कि इसमें हम थोड़े फ्लुएंट ऑलरेडी हैं, है ना, इसमें हमें कुछ से ट्रू। अलग से नहीं। तो फिर इसलिए मैं थोड़ा यूएस और कनाडा के, बट यूएस के भी अब थोड़े वो हो गया था, सही नहीं चल रहा था, तो मैंने फिर कनाडा और यूके ही प्रेफर किया। तो यूरोपियन ओके। कंट्रीज में लैंग्वेज की वजह से, क्योंकि उस टाइम मेरा ये था कि अब मेरे को 1 साल हो गया था स्टडी छोड़े, तो मेरा गैप भी आ रहा था। तो फिर मैंने लैंग्वेज सीखने की तरफ जाने की बजाय सीधा फिर उन्हीं में ही ट्राई किया कि जिनमें मेरे वेरी। लिए इंडल्ज होना इजी है। Yeah, तो we also लैंग्वेज। recommended the same thing. I mean, the similar structure. जहाँ English speaking हो तो it's the transition is very smooth and it's very long term. You can explore things. Anyways, तो इस प्रोसेस में अनिशा, हमारी टीम का क्या योगदान रहा, क्या कंट्रीब्यूशन रहा इस सक्सेस तो जैसे मैंने आपको भी बताया, ये पहला तो पेशेंस है ना, वो पूरे थ्रू आउट, देखिए बहुत लंबा प्रोसेस है। में? और यस यस। यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने से लेके वीजा तक बहुत ही लंबा है। और स्टार्टिंग से, क्योंकि ये है कि अब ये कोई मास्टर डिग्री तो है नहीं या बैचलर्स नहीं है, ये वेरी ट्रू। आपकी पिछली स्टडी के साथ सब मैच करके देखना पड़ेगा कि आप कहाँ पे फिट बैठोगे, क्या आपके लिए फिट बैठेगा। तो ये सारी एक रिसर्च, जो बहुत ही बड़ा रोल है इसका, ये सारी अ, आपकी टीम ने की है। तो ये है कि तब प्रोफेसर सिलेक्ट करने थे जब, वो उसमें तो चलो था ही कि मैंने भी किया है, बट वो ये है कि स्टार्टिंग से पहले यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी, कहाँ सीट्स है, कहाँ पोटेंशियल प्रोफेसर्स हैं हमारी फील्ड से मैच ट्रू। करते हुए। और फिर बाकी भी जो पेपर वर्क होता है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, क्योंकि वो इतना कुछ गलत हो जाए अगर आप न्यू हो तो कई बार, और बहुत लंबा होता है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना। बट ये सारा, वो मतलब मुझे किसी चीज का ऐसे वो नहीं था, मुझे ये था कि मेरा काम आप कर रहे हो तो वो सही ही है। कि अब मेरे एक और मेरे सीनियर थे, उन्होंने ऐसे खुद किया था, बट ही वाज लाइक बहुत ही ज्यादा हेक्टिक हो जाता है ये, कि कुछ गलती हो जाए वो फिर आगे जाके वो तंग करता है ना। और ये सारा तो वेरी। था अभी। तो जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन थी, जो भी रिसर्च थी, वो सारी आपकी टीम ने ही करी है, और बहुत अच्छे तरीके से करी है, बहुत अच्छी किया। वेल, थैंक यू, सो हैप्पी जब इस प्रकार का रिजल्ट बेसिकली आता है। स्पेशली आई माई सेल्फ फील वेरी कनेक्टेड विद द स्टूडेंट। भले ही बहुत बात अब नहीं हो पाती, जब शुरुआत कर रहे थे इस मेंटरशिप का तब तो बहुत समय रहता था, तो आसानी से कनेक्शंस बनता था आई वुड से। आज भी हमारे कई स्टूडेंट हैं जो स्टिल कनेक्टेड, टाइम टू टाइम बातचीत होती रहती है। सो एक तो होता है सिलेक्शन पार्ट, तो सेकंड स्टेप होता है वीजा एफर्ट्स, वीजा प्रोसेस, उसको लेके थोड़ा बताइए। वीजा का एक्चुअली मुझे इतनी नॉलेज तो थी नहीं, तो ये सारा तो मैंने मैम से ये बात की थी। तो ये था कि ये भी मेरा काफी स्मूथली हुआ। और वीजा जैसे स्टार्टिंग में बायोमेट्रिक देना, वो मेडिकल एग्जाम देना, ये सब है ना, फिंगरप्रिंट्स, ये सब भी होता रहा, वो भी टाइम टू टाइम होता रहा। मैम ने स्लॉट्स बुक करे, फीस भी सारी कुछ हम्म। डायरेक्ट नहीं थी, ट्रांजैक्शन आपकी तरफ से ही जाता रहा। और यस। लकीली मेरा 7 to 8 डेज में आ गया था। और वीजा पासपोर्ट पे। सब, हाँ जी, सब जल्दी यस। जल्दी हुआ। और वो सब एजेंट के ही थ्रू हुआ, मतलब मेरा उसमें ऐसा कोई रोल नहीं था। काफी लेंदी प्रोसेस, ये भी 1 डेढ़ महीना लग गया, बट स्मूथ यस हुआ। यस।
हाँ जी, सो काफी स्मूथ। बेसिकली ऑल थिंग्स आर डन, सिलेक्शन हो गया, आपका वीजा भी आ गया, केवल आई थिंक आपका जाने के लिए फ्लाइट बुकिंग और रहने वगैरह की व्यवस्था भी रहती है। राइट। और इस प्रोसेस में क्या एक्सपेंस रहा होगा आपका, यदि आप स्प्लिट करती हैं एक मेंटरशिप और वीजा प्रोसेस में लेके? आई थिंक बेसिक फीस ही थी जो टेस्ट वगैरह बुक करने की या सबमिशन करने की, वो ही थी, और एप्लीकेशन फीस थी जो यूनिवर्सिटी की थी। और बाकी जो उसकी थी की फीस थी वो भी, मतलब अब ऐसा यस। देखा क्योंकि आगे तो अब कोई इतना एक्सपेंस है नहीं है, तो यही था मेन पार्ट। एंड यस, ट्रू। वेरी मच मुझे ऐसे बीच में लगा था कि अब इतना इतना उसमें दे रहे थे ना हम, कि पहले इंस्टॉलमेंट्स में दे रहे थे, तो बीच में मुझे लगा था कि ज्यादा हो गया। मैंने शायद आपको भी बोला, नहीं फिर मैंने ऐसे गौर में कि नहीं इतना भी नहीं हुआ है, जितना लंबा प्रोसेस था, इतना मुश्किल प्रोसेस था, यस, उस हिसाब से इट वाज फाइन। ट्रू ट्रू। क्योंकि ऐसे और हमारी और आपसे कभी फेस टू फेस मुलाकात नहीं होती, राइट, ऑनलाइन ही रहता है। तो कभी ट्रस्ट का इशू नहीं आया आपको? ऑनलाइन मेंटरशिप प्लेटफॉर्म है, एंड सर मुझे तो इतना नहीं था स्टार्टिंग में, क्योंकि ये था कि मेरे से पहले दो सीनियर्स ने भी आपसे फाइल लगवाई थी, तो मुझे ऐसा ओके, था कि, बट क्योंकि जब बीच में ऐसे टाइम गैप आ जाता था ना कि अभी तक कुछ हुआ नहीं है, तो तब ऐसे गो नहीं रहा। कि तुझे पता है ना कि तूने सही जगह, क्योंकि उन्हें ये था कि तूने जो कहा हमने वो अब तेरी तरफ सही से, बात है। तो यस। तुझे पता है बिल्कुल। कहाँ रहते हैं, उनका ऑफिस कहाँ है, तुझे कुछ पता है? मैं क्या, मुझे कुछ नहीं लगा। तो तब ऐसे आना शुरू हो गया था। बट ऐसा मेरे लिए ट्रस्ट का नहीं कभी आया, क्योंकि या फिर ये कह सकते हैं कि बाय गॉड्स ग्रेस एंड लक मेरा सब कुछ स्मूथली हुआ जा रहा था, बस वो बीच में जो टाइम ज्यादा आ गया था, तब ऐसे घर पे जो डिस्कशन होती थी उसमें ऐसा लगता था कि एक बिल्कुल ही अननोन जगह पे हमने बिल्कुल पूरा ही अपने अब आप तो को कुछ कंप्लीट। अब तो कुछ नहीं कहते होंगे, सिलेक्शन भी, वीजा ऑल डन, एवरीथिंग इज ओके। अब तो वो कह रहे हैं कि हम जो मेरी सिस्टर है उसकी भी यही बात करेंगे, उन्होंने आपसे भी शायद बात की थी ना, तो हाँ। यस यस यस, दैट टाइम। यस यस। तो रहता है, ये क्वेश्चन जरूर पूछता हूँ मैं, भले ही आई हैव बीन मेंटरिंग ओवर 7 इयर्स, क्योंकि अभी भी मुझे लगता है कई मैं स्टूडेंट। मैं क्या, नहीं पापा उन्हें इतना टाइम हो गया है, उनकी वीडियोस देखी है मैंने, ये कि होएगा। आप भी, उन्होंने यस। मेरे को कहा, अपने को मैं आपको कहती हूँ पेशेंस रखो। यस। क्योंकि लॉन्ग प्रोसेस है, कोई फास्ट फॉरवर्ड में थर्ड गियर में कोई यस। चल नहीं सकता, है कि नहीं? एक और क्वेश्चन हमेशा रहता है अनीशा, स्पेशली फीमेल्स के लिए, जो सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, द चैलेंजेस लड़कियां जो फेस करती हैं, ऐसा कुछ चैलेंज आया हो आपने या देखा हो आपने आसपास, और उसको ओवरकम करने के लिए स्वयं से कुछ एक्सपीरियंस हो, या फिर कई एस्पिरेंट्स को आप कहना चाहें, कुछ सजेशन देना चाहें? मेरे साथ तो ऐसा नहीं है कुछ, कि हमारी फैमिली में भी काफी जो फीमेल्स हैं, वो जो वो करना चाहती है, जरूरी नहीं कि वो बाहर ही जाना हो, बट जो भी वो करना चाहती हैं, चाहे अपने नेटिव प्लेस से अलग हो या वहीं पे ही हो, तो दे गेट फुल सपोर्ट। बट ऐसा है आसपास कि कई इसी वजह से कि नहीं हम घर से नहीं जा सकते, या शादियों का प्रेशर होता है घरों में, है ना, कि अगर यस। आपको बाहर, तो आपको यू शुड गेट मैरिड फर्स्ट, कि इतना क्यों करना, या ये कर लो तब कर लेना। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको कुछ करना है ना, तो आपको घर से निकलना ही पड़ेगा, या अपने कंफर्ट जोन से निकलना, घर भी नहीं, आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही पड़ेगा। एंड बस अब यही है कि पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना चाहिए फुली, कि मैरिज इज नॉट एन ऑप्शन, कि मेरे ट्रू। लिए तो, मुझे नहीं लगता कि हर एक के लिए होता है। तो ये, पहले आप इंडिपेंडेंट बनो, खुद के लिए स्टैंड लो, काम करो, अपने पे मेहनत करो, वर्क हार्ड। एंड यस, आपको जो करना है, आप घर से निकलना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो तो करो, और पेरेंट्स को इस बात में सपोर्ट करना चाहिए। मेरे केस में ऐसा कुछ है नहीं है, क्योंकि मुझे फुल सपोर्ट मिला है अपनी फैमिली से, अपने रिलेटिव से, और
मेरे पास इतने आसपास भी वो नहीं है, बट फिर भी अगर है तो। और ऐसे बहुत सारे हैं, जो मेरी एक सीनियर थी उनका भी यही था कि अगर ये नहीं हुआ ना तो फिर मेरे घर वाले ऐसे शादी करा देंगे, ये कर देंगे। या कभी कभी ये होता है कि RF नहीं होता तो इसका भी कि चलो फिर पढ़ाने ही लग जाओ, नहीं करनी है PhD, कि कहीं वैसे हम्म। छोटे देख लो। बट फाइट करो, मान जाएंगे घर वाले। वेरी गुड। जैसे आपने अभी बात कही कि ना इंडिपेंडेंसी और अपना मार्क छोड़ना, है कि नहीं? तो ये बहुत। आप जैसे मेहनत करोगे, राइट? तो क्या करेंगे आप पीएचडी के बाद? सपोज करो पीएचडी कंप्लीट हुई आपकी। तो मेरा यही है कि PhD के बाद अगर तो वो इन्वायरमेंट सेट रहा और कनाडा में ही मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली आगे रिसर्च की या अपनी लैब की, तो फिर मैं हम्म। कनाडा। वरना और भी कंट्रीज हैं, वापस आने का ऑप्शन भी है ना, कि जहाँ पे भी यस यस। पोस्ट डॉक्टरल प्रोग्राम्स मुझे अच्छे मिलेंगे, बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तो मैं वहां पे ही इंडल्ज होना चाहूंगी। तो आप एकेडमिक्स में रहना चाहती हैं और या फिर इंडस्ट्री में मूव करना चाहेंगे आफ्टर नहीं, मैं कंप्लीशन ऑफ इंडस्ट्री पीएचडी? में move करना चाहूंगी, हाँ जी। यस यस, यू कैन एक्सप्लोर, यू कैन आल्सो कम बैक। बहुत बहुत सारे लोग हैं जो Yes. देखा मैंने, इंडस्ट्री में हम्म, काम करते हैं कुछ साल, उन्हें लगता है कि वेल एनफ एक्सपीरियंस एंड मनी हैज बीन देयर, नाउ स्विच बैक टू yes, एकेडमिक्स। या तो वेरी नाइस। और मेहनत करना बहुत जरूरी है। अपना जो भारतीय yes, ब्रेन है उसमें हमारा अच्छे से उसको बोलते हैं रगड़ाई करके रखते हैं, ताकि कहीं भी स्टैंड कर पाए दुनिया भर में। आप गूगल के सीईओ देख लो, माइक्रॉन देख लो, हर जगह माइक्रोसॉफ्ट देख लीजिए, वी आर ऑल इंडियंस रूलिंग द वर्ल्ड। तो वैसा ही नाम आप भी करें, है उसके लिए एक प्लेटफॉर्म मिल गया है आपको। जितना मेहनत करेंगे, एक पॉजिटिव सोच से आप आगे बढ़ेंगी। कंफर्ट बाद में, हार्ड वर्क पहले, ये आपको अंदर अपनाना होगा। तभी जाके एक सितारे के तौर पे आप चमकेंगी। अपने देश को प्राउड होगा, ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स और आपके दोस्तों को भी प्राउड होगा, स्वयं को भी होगा। yes, sir. कुछ और फाइनल वर्ड्स कहना चाहेंगे आप तो प्लीज शेयर विद अस। नहीं, बस यही है कि जो आप करना चाहते हो वो आप करो, और रिसर्च करो पहले अपने बारे में, है ना, कि क्या आपने किया है, क्या आप आगे करना चाहते हो, उसे आप कैसे अचीव कर सकते हो, और वो होगा। हैव पेशेंस एंड डू योर वर्क। थैंक यू सो मच Annie Anisha. All right. We'll connect with you soon again. Take care. थैंक यू Bye. सर। बाय।